Hello students, today we are going to start with exercise 2.2. लास्ट टाइम हमने प्रॉपर्टीज की थी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की. अब उन्हीं प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चंस है. क्वेश्चन 1 इट इज ये प्रूव करने तो 3 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x. अब जैसे यार अगर मैं x को sin थीटा पुट करता हूँ तो ये बनता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, और ये आइडेंटिटी है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा इज आइडेंटिटी फॉर sin थीटा. ठीक, तो लेट्स पुट x इक्वल टू sin थीटा. Now what I will get here? Therefore, let me take RHS. RHS बनेगी sin inverse 3 sin theta minus 4 sin 2 theta. And यहाँ लिख देता हूँ मैं because this equal to sin 3 theta. Therefore, this is equal to sin inverse 3 sin theta minus 4 sin 2 theta is sin 3 theta. तो यहाँ लिख देते हैं sin 3 theta. अब ले लेते हैं LHS 3 sin इनवर्स. हमने पुट किया x इक्वल टू sin थीटा, तो therefore थीटा इक्वल टू therefore sin इनवर्स x इक्वल टू थीटा. करेक्ट. तो LHS है हमारी 3 sin इनवर्स x, बट sin इनवर्स x इक्वल टू थीटा. therefore this is equal to 3 थीटा. एंड हियर sin इनवर्स sin थीटा, sin इनवर्स sin x हमने पढ़ा था x के इक्वल है, सो दिस इज 3 थीटा. सो बोथ आर इक्वल एंड लास्ट में आप लिख सकते हैं therefore LHS इक्वल टू RHS. सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड वन. क्वेश्चन 2 आई एम स्टार्टिंग. इट इज 3 cos इनवर्स x is equal to cos inverse 4x cube minus 3x. और given x belongs to 1 by 2 to 1. ठीक है. Now let's see. पहले हमने x को पुट किया था, रादर इधर भी x को हम पुट कर रहे हैं. x को मैं cos थीटा पुट कर लूं तो मेरे पास सेम रिजल्ट आएगा, सेम ही रिजल्ट आएगा 4 cos 2 थीटा माइनस 3 cos थीटा व्हिच इज cos 3 थीटा. तो सिमिलर वे में मैं सॉल्व कर सकता हूं. तो लेट्स चेंज द वे नाउ. लेट्स पुट दिस टाइम cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा. इस बार हम cos इनवर्स x को थीटा पुट करते हैं. व्हाट डज दिस इंप्लाई? दिस इंप्लाइज x इक्वल टू cos थीटा. तो पहले क्वेश्चन में हमने इसको पुट किया था x को और ये रिजल्ट लाया था. cos इनवर्स को पुट किया तो ये रिजल्ट आया. अब LHS ले लेते हैं. 3 cos इनवर्स x will become 3 थीटा. आई थिंक दैट इज क्लियर. cos इनवर्स x थीटा. ठीक है. अब लेते हैं RHS. cos इनवर्स 4 x किसके इक्वल है? cos थीटा. तो मैं वही पुट करने जा रहा हूँ. cos 2 थीटा माइनस 3 cos थीटा बिकॉज x इक्वल टू cos थीटा. Now this is equal to cos inverse 4 cos cube theta minus 3 cos theta becomes cos 3 theta, and this is equal to theta. This is equal to 3 theta. अगर खाली हो cos inverse cos x x के इक्वल आएगा तो x की जगह ये है. ठीक है. यहाँ पे लिख देते हैं because 4 cos cube theta minus 3 cos theta equal to cos 3 theta. So that's all in the second question. Let me move on to the third one. So see question 3. This proof tan inverse 2 by 11 plus tan inverse 7 by 24 equal to tan inverse 1 by 2. So let me take LHS. Tan inverse 2 by 11 plus tan inverse 7 by 24. Can I write it? tan inverse
tan inverse x plus tan inverse y, it is equal to tan inverse x plus y upon 1 minus xy, provided xy should be less than 1. xy का प्रोडक्ट 1 से छोटा होना चाहिए. तो 2/11 into 7/24, ये भी 1 से छोटा है, ये भी 1 से छोटा है, दोनों का प्रोडक्ट भी 1 से छोटा है. So if you wish to write, you can write because tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse x plus y upon 1 minus xy. ठीक है, xy should be less than. So this is equal to now tan inverse. Let me add up these two. 2/11 plus 7/24. 11 and 24 are 4 prime. So it will be, let me write it in this manner only, 11 into 24. 24 2s are 48 plus 11 7s are 77. One step I am writing directly now. It is divided by, when I multiply, naturally I am going to take the, this I am going to erase. बता दिया आपको x y लेस देन 1 है, इनटू दिस विल बी, इनटू किया तो रेसिप्रोकल लेके ये आएगा 11 into 24 अपॉन 11 into 24 minus 2 7s are 14. Right? ये तो कैंसिल हो जाएगा. So what we are left with, let me write it here. So this is equal to tan inverse. So this is same as LHS. ये LHS ही आ रही है. So LHS is tan inverse 48 plus 77, 125. 11 into 24. Let me first calculate this one. 264 minus 14. So this is equal to tan inverse 125 upon 250. So this is equal to, this will cancel, tan inverse 1/2. We started with LHS and now we have arrived at RHS. So this result is good. So let me pick up the next one. It is 2 tan inverse 1/2 plus tan inverse 1/7 equal to tan inverse 31/7. देखिए LHS लेंगे, 2 tan inverse x की आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, दैट इज tan inverse 2x अपॉन x की जगह कितना 1/2 अपॉन 1 minus x square प्लस tan inverse 1/7. I can write because 2 tan inverse x is equal to tan inverse 2x upon 1 minus x. Right? So this is equal to tan inverse 2 into 1/2, that is 1 only, and it is 1 minus 1/4. I am writing it directly 3/4, and it will be 4/3. So this step I have written directly. यहाँ आएगा 1/4, वो बनेगा 3/4 और टोटल बन जाएगा 4/3 प्लस tan inverse 1/7. Now again I am going to use here tan inverse x plus tan inverse y. और देख लें x, ये x है 4/3 और ये y है 1/7. x y देख लेते हैं कितना आता है, 4/3 into 1/7, that is 4 upon 21 less than 1. So I can use the identity. क्या बनेगी, this is equal to, this is LHS only, tan inverse, it is tan inverse x plus tan inverse y. Tan inverse x plus y 4/3 plus 1/7 upon 1 minus xy 4/3 into 1/7. This is equal to tan inverse 28 plus 3, 31 upon 21. And here also I am writing this step directly. It will be 21 minus 4, 17. 21 here
and 70. We cancel हो गया. This is equal to tan inverse 31/70, which is RHS. Now here, just pay attention. किसी को 2 tan inverse x की आइडेंटिटी भूल गई. सपोज ये था हमारा 2 tan inverse x. हमने यहाँ डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज की 2 tan inverse x की. tan inverse 2x upon 1 minus x square. Can I write tan inverse x as 2 tan inverse x as tan inverse, मैं ये नंबर ही ले लेता हूँ, 1/2 था. Can I write it tan inverse 1/2 plus tan inverse 1/2? जैसे 2 tan inverse x होता तो उसको लिख सकते हैं tan inverse x plus tan inverse x. Again, देखिए 1/2 into 1/2 is 1/4. That means xy is less than 1. So I can use the identity of tan inverse x plus tan inverse y, which is tan inverse x plus y upon 1 minus xy. तो वो नंबर सेम बन जाता है. x plus y 1/2 plus 1/2 upon 1 minus 1/2 into 1/2. तो ये बना 1 upon 1 minus 1/4. ये भी यही बन रहा था कि 2 तो कैंसिल हो जाता 1 upon 1 minus 4. तो अगर ये आइडेंटिटी डायरेक्ट आपको नहीं याद रही तो आप इसको ब्रेकअप करके इस ढंग से भी लिख सकते हैं. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन 5 is write the function in the simplest form. इस फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें लिखना है. हम क्या करेंगे, पुट कर लेते हैं 1 plus x square equal to, sorry, let me put x equal to tan theta. और प्लीज याद रखना, अगर कोई भी एक्सप्रेशन इस फॉर्म में है, हमें सब्स्टिट्यूशन की जरूरत है. 1 plus x square की फॉर्म में x को या tan theta पुट करेंगे या cot theta as per the condition. tan inverse 1 plus tan square theta कितना बन जाएगा, sec square theta minus 1 upon tan theta. ये बन जाएगा. Therefore, let me write this is equal to tan inverse. ये बन जाएगा sec theta minus 1 upon tan theta. सिंपलेस्ट फॉर्म में जाना, अभी और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको हम कर सकते हैं. Can I write it tan inverse sec theta? I can write it as 1 upon cos theta minus 1. tan theta को लिख सकते हैं sin theta upon cos theta. This is equal to tan inverse. ये स्टेप आपने डायरेक्ट लिखा है. ये बनेगा 1 minus cos theta by cos theta और ये cos कैंसिल हो जाएगा और टोटल हमारे पास बचेगा 1 minus cos theta by sin theta. ये बनेगा 1 minus cos theta upon cos theta. इनटू करेंगे तो cos theta by sin theta आएगा, cos कैंसिल हो जाएगा. tan inverse, हाँ जी, what is 1 minus cos theta? 1 minus cos theta, it is 2 sin square theta by 2. और ये कहाँ से आया हमारे पास 2 sin square theta by 2? ये बेसिकली जो आइडेंटिटी है आपकी cos 2 theta वहां से ले. तो 1 minus cos theta को मैं लिखने जा रहा हूँ 2 sin square theta by 2. और sin theta को देखिए sin theta है, इसको मैं लिख सकता हूँ sin 2 theta by 2. And what is sin 2 theta? It is 2 sin theta into cos theta. इसको मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 sin theta by 2 into cos theta by 2. साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा tan इनवर्स sin theta by 2 upon cos theta by 2, that is tan theta by 2, and tan inverse tan x, that is x, and it is theta by 2. ठीक है. अब थीटा किसके इक्वल था? अगर x tan theta है तो थीटा will be tan inverse x. ठीक है. So let's substitute the value of theta here. So the final answer will be 1 upon 2 tan inverse x. So that is the simplest form of this expression. Let me move on to the next question. Coming on to question 6. Question is same. Write the function in the simplest form. इसको भी simplest form में लिखना है. यहाँ पे पुट कर लेते हैं x equal to sec theta. अब प्लीज पहले क्वेश्चन में एक्सप्रेशन था 1 plus x square. 1 plus x square एक्सप्रेशन हो तो x को जनरली पुट करते हैं tan theta और cot theta. अगर
एक्स स्क्वायर माइनस वन हो तो पुट करेंगे सेक थीटा या कोसेक थीटा, और अगर ये वन माइनस एक्स स्क्वायर होता तो पुट करते साइन थीटा और कॉस थीटा। एक्स को हमने पुट किया सेक थीटा, ये क्या बन जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। किसकी आइडेंटिटी है ये? सेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज tan स्क्वायर थीटा, रूट में है कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन tan थीटा हो जाएगा। तो ये क्या बन गया tan इनवर्स 1 अपॉन दिस इज cot थीटा। अब अगर मुझे ये tan में मिलेगा तो दैट विल बी बेटर फॉर मी, तो लेट मी राइट इट एज tan पाई बाय 2 माइनस थीटा। cot थीटा को tan पाई बाय 2 माइनस थीटा लिखा जा सकता है। तो tan इनवर्स tan x, ठीक है, tan इनवर्स tan x इज x, दिस इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस थीटा, and condition remains same, it is tan inverse tan x equal to x where x lies between minus pi by 2 to pi by 2. Now what is theta? If x equal to sec theta, theta will be sec inverse x, so I can write it as pi by 2 minus sec inverse x. So that's the simplest form of this expression. So let me move on to the next question. It is tan inverse under root 1 minus cos theta upon under root 1 plus cos theta. It is not theta x here. Here it's x. X less than pi. Now again I want to bring this function in the simplest form, so here to I can write 1 minus cos x. 1 minus cos x is 2 sin square x by 2 upon under root 1 plus cos x is 2 cos square x by 2. 1 minus cos x is 2 sin square x by 2 and 1 plus cos x is 2 cos square x by 2. और प्लीज समझ लेना ये cos 2x है, इसको हम लिखते हैं cos square x minus sin square x। इसको मैं लिख सकता हूँ cos 2x इक्वल टू 1 minus 2 sin square x। नंबर 1, पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, एंगल को हाफ कर देते हैं, यानी ये एंगल को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये बनेगा cos x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाय 2। ठीक है, इसको मैं इधर ले आता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, तो बनेगा 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 इक्वल टू 1 माइनस cos x। सो प्लीज देख लें, 1 माइनस cos x जब भी कहीं होगा तो उसका मतलब है 2 साइन स्क्वायर x बाय 2। अब यहाँ पे इसको मैं चेंज कर सकता था, cos 2x कैन आल्सो बी रिटन एज, मैंने यहाँ क्या किया था cos स्क्वायर x को 1 माइनस sin स्क्वायर x लिखा था। अगर मैं sin स्क्वायर x को 1 माइनस cos स्क्वायर x लिखूं तो वो बनेगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। एंगल को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो बनेगा cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1, राइट। और इस 1 को इधर ले आते हैं तो बनेगा 1 प्लस cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाय 2। So 1 plus cos x can be written as 2 cos square x by 2. That is how these formula have been used. So this is equal to tan inverse. Now 2 and 2 we can cancel straight away, and it is sin square x by 2 under the root cos square x by 2 under the root. So it will become tan square x by 2 under the root, and which will be tan x by 2. क्वेश्चन में क्या दिया, ऐसे पूरा रूट दिया तो मैंने सेपरेट सेपरेट ले लिया है, तो दैट वी कैन डू। अगर ये रूट अंडर रूट ऑफ x बाय y है, उसको मैं अंडर रूट x अपॉन अंडर रूट y लिख सकता हूँ। दिस इज इक्वल टू, प्रोवाइडेड x और y में दोनों नेगेटिव नहीं होने चाहिए, tan इनवर्स, तो ये कितना बन जाएगा tan इनवर्स tan x बाय 2 कितना बन जाएगा
x by 2 बन जाएगा, ठीक है। एंड आई थिंक दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन की भी जरूरत नहीं पड़ी इस क्वेश्चन में हमें। लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट। दिस इज क्वेश्चन 8। अगेन द क्वेश्चन इज सेम, वी नीड दिस फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब देखें इसमें हम क्या करेंगे, tan इनवर्स। अगर मैं यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos x से डिवाइड कर दूं तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो मैं थ्रू आउट डिवाइड कर रहा हूँ cos x से। अब यहाँ लिख देते हैं डिवाइडिंग numerator and denominator by cos x। अब ये क्या बनेगा, cos x by cos x 1 माइनस sin by cos tan x, ये 1 प्लस tan x। और कभी भी इस फॉर्म में आ जाए हमारे पास एक्सप्रेशन 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, उसको कैसे लिखेंगे प्लीज ध्यान से देख लेना। अगर मैं इसको tan पाई बाय 4 लिखता हूं तो 1 ही रहेगा, ठीक है। तो अगर इस एक्सप्रेशन को मैं लिख देता हूं tan पाई बाय 4 माइनस x, tan a माइनस b की आइडेंटिटी क्या है, tan a माइनस tan b। tan a का मतलब tan पाई बाय 4 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x अपॉन tan a प्लस b की आइडेंटिटी लिख देता हूँ। इट इज tan a, सॉरी माइनस है यहाँ, माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। अब tan a की जगह tan पाई बाय 4 आएगा तो 1 आएगा अपॉन 1 प्लस tan a 1 बन जाएगा और tan b tan x बन जाएगा, ये ही सेम रहेगा। नाउ दिस इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस x। So that's all in this question. That is the simplest form. So let me move on to the next one. It is tan inverse x upon a square minus x under mod x less than. The question is the same. We need to write in simplest form. सपोज यहाँ a ना होके 1 होता तो ये होता 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कभी भी अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर या 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो साइन या कॉस में पुट करें एज पर द क्वेश्चन। तो ये बनेगा tan इनवर्स, मैं पुट कर लेता हूँ पहले, x इक्वल टू, अगर 1 होता तो हम सीधा x इक्वल टू साइन थीटा या कॉस थीटा पुट करते, बट यहाँ पे a है तो मैं x को पुट कर रहा हूँ लेट्स से a साइन थीटा। ये बनेगा tan इनवर्स, ये बना a साइन थीटा अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन यहां से a स्क्वायर कॉमन निकलेगा, रूट a स्क्वायर से रूट a स्क्वायर बनेगा वो a बन जाएगा, अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, रूट में रूट कैंसिल होगा तो कॉस थीटा बच जाएगा, a कैंसिल, क्लियर हो गया। अच्छा अगर x a साइन थीटा है तो दिस इंप्लाइज थीटा कितना आएगा, थीटा आएगा साइन इनवर्स x समान है, ये भी याद रखें, लास्ट में हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया वैल्यू। मेरे पास बचा tan इनवर्स sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा, can I write it theta and what is theta? It is sin inverse x upon, so that is
simplest form of this expression. Let me move on to the next one.